In the name of Allah, the most beneficent, the merciful. Today we will discuss the role of the teacher in the 21st century classroom. Along with this, we will discuss the different teaching styles. वो रात मेरी कौम पे तारीक ना होगी जिस शाम मेरे कशकोल में बीक ना होगी और खुदा ने उस कौम की हालत नहीं बदली जिसके मकतब की फिजा ठीक ना होगी. Dear training teachers, as we are now in a digital era where after every second we have new modifications, new developments. So let's talk about the role of teacher in the 21st century classroom. Here are some traits of the 21st century teacher. Relevant. Teacher should be relevant, should be social, forward thinking, collaborative, lifelong learner, actively engaged, student centered and flipped. ये वो 8 बातें हैं जो कि 21st century टीचर के अंदर होनी चाहिए. टीचर शुड बी रेलेवेंट, social, forward thinking, collaborative, lifelong learner, actively engaged, student centered and flipped. याद रखें 21st century जो है ये टीचर को भी इस बात पे ले आई है कि आपकी इनोवेटिव अप्रोच होनी चाहिए, आप लाइफ लॉन्ग लर्नर हो. आप ये ना सोचें कि मैं टीचर बन गया हूं तो मुझे फर्दर किसी भी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है. A 21st century teacher must know how to provoke students' curiosity and intrinsic motivation to learn. Establish a safe, supportive and positive learning environment for all students. Encourage cultural awareness and cultural sensitivity in students. Encourage cooperation among students. Act as a classroom facilitator. Make students feel appreciated. Have long and short-term plans. Communicate. ये कुछ जनरल सी इंट्रो थी कि जो 21st सेंचुरी टीचर जो है उसके अंदर ये चीजें होनी चाहिए. जी, जिस पे हम बात कर चुके हैं 8 traits of 21st century teacher. Relevant. अब आप देखिए इसमें आपको तकरीबन हर चीज जो पिक्चर है वो खुद बोल के बता रही है. टीचर शुड बी रेलेवेंट, नॉट आउटडेटेड बट अपडेटेड. सोशल, टीचर शुड बी सोशल. फॉरवर्ड थिंकिंग, थिंकिंग ऑफ टीचर शुड बी future related developments. Collaborative, actively engaged, not a passive teacher, lifelong learner, because teaching itself a learning process. Student centered and flipped. Here, what is pedagogical knowledge? Pedagogical knowledge क्या है? It is the knowledge about how to teach the students. ये वो तरीकाकार है जो ये सिखाता है, ये बताता है कि स्टूडेंट्स को किस तरह से पढ़ाना है. हाउ टू टीच द स्टूडेंट्स. इसका मतलब ये है कि टीचर को वो तमाम टेक्निक्स, मेथोडोलॉजीज, स्ट्रेटजीज आनी चाहिए जो कि 21st century classroom requirement है. It is a systematic study about science of teaching and learning. It is about how knowledge we organize effectively and use in order to implement curriculum. कि किस तरह से नॉलेज को ऑर्गेनाइज करना है और फिर किस तरह से उसको डिलीवर करना है.
It is a study on how to teach and why we teach that way. हमें ये पता होना चाहिए कि हम इस तरीका तदरीस को क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, based on what we know about children learning styles. Pedagogical content knowledge. Every subject has its own demands or flavors. So there are different ways to teach different subjects. याद रखें कि हर सब्जेक्ट का अपना टेस्ट होता है, उसका अपना एक आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंस होती है उस सब्जेक्ट की। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का तरीका भी अलग है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंसेज, उर्दू, इंग्लिश, पाकिस्तान स्टडीज, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लिटरेचर, एंड कोई भी जो सब्जेक्ट है वो हर एक को पढ़ाने का अंदाज भी उसी तरह का है कि जिस तरह का उस सब्जेक्ट का अपना कंटेंट है। कुछ लॉजिकल होते हैं, कुछ एलेबोरेटिव होते हैं, तो उसके मुताबिक हमने अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को फिर चेंज करना है, मॉडिफाई करना है। टीचिंग स्टाइल्स। एवरी टीचर हैज हर or his own style of teaching, and as traditional teaching styles evolve with the advent of differentiated instruction, more and more teachers are adjusting their approach depending on their students' learning needs. यानी वक्त के साथ साथ जो भी तब्दीली आ रही है तो टीचर भी चेंज हो रहा है, उसको भी चेंज होना है अपने स्टूडेंट्स की नीड्स के मुताबिक। जो स्टूडेंट्स की डिमांड है उसके मुताबिक टीचर को अपनी जो तदरीसी हिकमत अमलियां हैं, जो टीचिंग स्ट्रैटेजीज हैं, वो उसको चेंज करनी पड़ेंगी, मॉडिफाई करनी पड़ेंगी। बट देयर आर अ फ्यू फंडामेंटल टीचिंग स्टाइल्स मोस्ट एजुकेटर्स स्टैंड टू यूज। विच वन इज योर्स? तो आपको उसका ख्याल करना होगा। यू हैव गॉट स्टाइल। दिस टीचिंग स्टाइल्स हाईलाइट द 5 मेन स्ट्रैटेजीज जो आज हम जिन पे बात करेंगे। Main 5 strategies teachers use in the classroom as well as the benefits and potential pitfalls of each. ये हम आज डिस्कस करेंगे। The first style is the authority or lecture style, the most famous style. The authority model is teacher centered. Authority model जो है, this is the teacher centered and frequently entails lengthy lecture sessions or one-way presentations. Students are expected to take notes or absorb information. Authority या lecture style mostly हमारे classrooms का हिस्सा है और इसमें टीचर जो है वो बेसिकली एक्टिव है और स्टूडेंट्स क्या हैं, पैसिव हैं। अब हम देखते हैं इनके प्रोज कॉन्स क्या हैं, वो कौन सी खूबियां हैं, कौन सी खामियां हैं जो अथॉरिटी या लेक्चर स्टाइल को जाहिर करती है। द स्टाइल इज एक्सेप्टेबल फॉर सर्टन हायर एजुकेशन डिसिप्लिन्स एंड ऑडिटोरियम सेटिंग्स विद लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। बड़े लेवल पे इसको एक्सेप्ट किया जाता है। द प्योर लेक्चर स्टाइल इज मोर सूटेबल फॉर सब्जेक्ट्स लाइक हिस्ट्री विच नेसेसिटेट मेमोराइजेशन ऑफ की फैक्ट्स, डेट्स, नेम्स एटसेट्रा। इसका मतलब है कि जो लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए लेक्चर स्टाइल उस तरह से फ्रूटफुल नहीं होता। इसके कॉन्स को भी हम देख लेते हैं। इट्स अ क्वेश्चनेबल मॉडल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन बिकॉज देयर इज लिटिल और नो इंटरेक्शन विद द टीचर। इसलिए ये स्टाइल अब उस तरह से इफेक्टिव नहीं है। प्लस इट कैन गेट अ लिटिल स्नूजी। That's why it's a better approach for older, more mature students, not for the beginners, the primary students that need active participation. The demonstrator or coach style. Demonstrator retains the formal authority role by showing students what they need to know. The demonstrator is a lot like the lecturer, but their lessons include multimedia presentations, activities and demonstrations. इसमें demonstrate करते हैं students, teacher demonstrate करता है इसमें। अब इस स्टाइल की कुछ प्रोज और कॉन्स को हम देख लेते हैं। This style gives teachers opportunities to incorporate a variety of formats including lectures and multimedia presentations.
टीचर को इसके अंदर काफ़ी आसानी हो जाती है कि वो अपने स्टूडेंट्स के साथ मल्टीमीडिया के ज़रिए, इवन प्रेजेंटेशंस के ज़रिए जो है वो अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करता है। इसके कॉन्स में क्या है? ऑल्दो इट्स वेल सूटेड फॉर टीचिंग मैथमेटिक्स, म्यूजिक, फिजिकल एजुकेशन और आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, it is difficult to accommodate students' individual needs in larger classrooms. इंडिविजुअली फिर ज़रा प्रॉब्लम हो जाती है, लार्ज बहुत बड़ी क्लासरूम है, हर एक बच्चे के साथ आप उसको इंटरेक्ट करके उसको रिस्पांस देना, ये ज़रा इशू होता है इस टीचिंग स्टाइल में। द फैसिलिटेटर आर एक्टिविटी स्टाइल। द फैसिलिटेटर आर एक्टिविटी स्टाइल, नाम से ही जाहिर हो रहा है, facilitators promote self-learning and help students develop critical thinking skills and retain knowledge that leads to self-actualization. यानी facilitators क्या हैं? सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करते हैं, स्टूडेंट्स को क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स की तरफ लेके जाते हैं, एंड रिटेन नॉलेज दैट लीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और ऐसे नॉलेज की तरफ उनकी रिटेंशन को बढ़ाते हैं जो कि उनकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो है उसमें मदद करता है। प्रोज इसके क्या है? दिस स्टाइल ट्रेन्स स्टूडेंट्स टू आस्क क्वेश्चंस एंड हेल्प्स डेवलप स्किल्स टू फाइंड आंसर्स एंड सॉल्यूशंस थ्रू एक्सप्लोरेशन। स्टूडेंट सेंटर्ड है, स्टूडेंट्स को इसमें मदद मिलती है, वो अपनी स्किल्स को बढ़ाते हैं, क्वेश्चनिंग करते हैं। इट इज़ आइडियल फॉर टीचिंग साइंस एंड सिमिलर सब्जेक्ट्स। इसके कॉन्स को देख लेते हैं, इसकी खामियां क्या हैं? Challenges teacher to interact with students and prompt them toward discovery rather than lecturing facts and testing knowledge through memorization. So it is a bit harder to measure success in tangible terms. The delegator or group style. The delegator or group style. The delegator style is best suited for curricula that require lab activities such as chemistry and biology, or subjects that warrant peer feedback like debate and creative writing. यानी ग्रुप स्टाइल में आप एक तो ग्रुप एक्टिविटीज करवा सकते हैं आसानी से, फिर ये पीयर फीडबैक, जब आपने किसी ग्रुप के साथ इंटरेक्शन है तो आप ग्रुप फीडबैक लेते हैं, जिससे जैसे डिबेट है, क्रिएटिव राइटिंग है, तो ये डेलीगेटर या ग्रुप स्टाइल उस हवाले से बड़ा इफेक्टिव होता है। इसकी प्रोज को देख लेते हैं, खामियां, खूबियां इसकी जो है वो देखते हैं हम पहले। गाइडेड डिस्कवरी एंड इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग प्लेस द टीचर इन एन ऑब्जर्वर रोल दैट इंस्पायर स्टूडेंट्स बाय वर्किंग इन टेंडिंग टुवर्ड कॉमन गोल्स। यानी टीचर यहाँ पर ऑब्जर्वर होता है, वो जस्ट उनको फैसिलिटेट कर रहा होता है, उनको लर्निंग स्टाइल में स्टूडेंट्स को इंस्पायर कर रहा होता है कि वो अपनी ग्रुप जो एक्टिविटी है उसमें लर्निंग को बढ़ाएं, एक दूसरे से सीखें। कॉन्स में क्या है? कंसिडर्ड अ मॉडर्न स्टाइल ऑफ टीचिंग, इट इज समटाइम्स क्रिटिसाइज्ड एज eroding टीचर अथॉरिटी। एज अ डेलीगेटर द टीचर एक्ट more as consultant rather than the traditional authority figure. ये कई दफ़ा इस पर सोचा जाता है कि चूंकि ये स्टूडेंट सेंटर हो जाता है, टीचर अपनी पावर्स जो है वो स्टूडेंट्स की तरफ दे जाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात है इस डेलीगेटर या ग्रुप स्टाइल की कि इसमें जो स्टूडेंट है फील ईज एंड इंडिपेंडेंस टूवर्ड्स लर्निंग, वो अपनी सेल्फ पेस पे लर्निंग करता है स्टूडेंट। इससे उसकी जो आप कह सकते हैं कि जो लर्निंग स्किल्स होती हैं वो बढ़ती हैं, रिफाइन होती हैं, और उसको अपना पता चलता है कि मेरी पोटेंशियल कितनी है। द हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल, अब इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि ये एक मिक्स्ड वर्जन है टीचिंग स्टाइल का। हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल follows an integrated approach to teaching that blends the teacher's personality and interests with students' needs and curriculum appropriate methods. यानी ये टीचर को इतना फैसिलिटेट करता है, ये स्टाइल इतना टीचर को इतनी आसानी दे देता है कि टीचर अपनी मर्जी से स्टाइल्स की मिक्सिंग कर लेता है, अपनी मर्जी का स्टाइल यूज करके स्टूडेंट से उसने जो है वो आउटकम लेनी होती है। जैसे वो बड़ा एक
मशहूर किसी ने जुमला बोला था कि अच्छा सिपा सालार वो होता है जो मैदान जंग में हालात के मुताबिक खुद फैसला कर लेता है और वो किसी ऑर्डर का इंतजार नहीं करता, और स्टूडेंट को जहन में रख के उनकी नीड्स को टीचर जब क्लास के अंदर खुद से टीचिंग स्टाइल को डिजाइन करता है तो फिर उसको हम कहते हैं कि दिस इज द हाइब्रिड और ब्लेंडेड स्टाइल। इंक्लूसिव है and it enables teachers to tailor their styles to student needs and appropriate subject matter। खुद से डिजाइन करें। इसके कॉन्स क्या है? हाइब्रिड स्टाइल रन्स द रिस्क ऑफ ट्राइंग टू बी टू मैनी थिंग्स टू ऑल स्टूडेंट्स। यानी हर स्टूडेंट का भी तो एक इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल होता है ना, तो फिर टीचर भी तमाम स्टूडेंट को उस तरह से अगर एड्रेस नहीं कर पाता तो ये इसका एक ड्रॉबैक है। प्रॉम्प्टिंग टीचर्स टू सेपरेट देमसेल्व्स टू थिन एंड डाइल्यूट लर्निंग। अब यहाँ पर एक बात है, ये स्टाइल्स को तो हमने डिस्कस कर लिया, असल में टीचिंग इज एन आर्ट। जो पढ़ाने का तरीका है ये एक आर्ट है, और टीचर जो है वो एट द सेम टाइम वो फैसिलिटेटर भी है, वो एक्टर भी है, वो डायरेक्टर भी है, वो फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएटर भी है, वो स्टूडेंट्स के लिए एक आइडियल पर्सनालिटी भी है। तो फिर टीचर जो है वो क्लासरूम के अंदर टीचर ने ये देखना है कि जो मेरी क्लास है, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो मेरे लर्नर हैं, इस वक्त उनका माइंड सेट कैसा है। फिर उस माइंड सेट को लेके आपने अपने टीचिंग स्टाइल को डिजाइन करना है, और ये क्लास टू क्लास वेरी करता है, पीरियड टू पीरियड वेरी करता है, ये डे टू डे वेरी करता है। इसलिए आपने अपने आप को इनोवेटिव रखना है, आपने अपने आप को लाइफ लॉन्ग लर्निंग में डाल के रखना है, आपने अपने आप को एक्टिव रखना है, क्योंकि ये जो 21st सेंचुरी है ये आपसे यही डिमांड करती है कि आपको यू हैव टू कोप अप विद द डिमांड्स ऑफ 21st सेंचुरी। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं जी। टीचर्स हैव स्टाइल्स that reflect their distinct personalities and curriculum, from math and science to English and history. It's crucial that they remain focused on their teaching objectives and avoid trying to be all things to all students. तो ऐसा नहीं करना। अब देखें, ये डायग्राम भी हमें यही बता रही है, ये फिगर हमें यही बता रही है कि टीचर एज फैसिलिटेटर, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग, repressive leadership, dominator, student conformity or rebellion. Teacher passive as enabler, self-centered, functional and dysfunctional। ये देख लें आप कि फंक्शनल टीचर कौन सा है और डिसफंक्शनल टीचर कौन सा है। अब हमने ये सोचना है कि हमने कौन सा बनना है, whether we want to become a functional teacher or a dysfunctional teacher। फंक्शनल टीचर फैसिलिटेटर होता है, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। एफर्शन में फिर क्या होता है? टीचर पैसिव होता है एज एनेबलर, सेल्फ सेंटर्ड, और टीचर डोमिनेट करता है। तो डोमिनेशन याद रखें, डोमिनेशन क्या है? टीचर डोमिनेशन ये नहीं होती कि आप टीचर हैं और क्लास के अंदर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो। आपको कब्रिस्तान तो नहीं चाहिए ना, पिन ड्रॉप साइलेंस वहाँ होता है। तो टीचर डोमिनेट कब करता है? जो सही डोमिनेशन होती है ना टीचर की, वो ये होती है कि टीचर के पास लर्निंग स्टाइल्स की एक्सपर्टीज हो, टीचर के पास अपने नॉलेज पे ग्रिप हो। टीचर जो है, जो 21st टीचर है, 21st सेंचुरी टीचर है, वो डोमिनेट करेगा। पता है कैसे करेगा? वो ये ट्रेट्स देखें, यकीन करें, अगर टीचर जो है उसके अंदर ये ट्रेट्स हैं, ये जो हमें नजर आ रहे हैं स्क्रीन पे, इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ हम एक छोटे से लेक्चर में नहीं ला सकते। तो टीचर डोमिनेट करेगा। टीचर अगर स्किलफुल है, टीचर रेलेवेंट है, टीचर सोशल है, टीचर फॉरवर्ड थिंकर है, टीचर लाइफ लॉन्ग लर्नर है, टीचर फ्लिप्ड है, टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड है, टीचर एक्टिवली एंगेज्ड है क्लासरूम के साथ, टीचर कोलैबोरेटिव है, तो यकीन करें टीचर डोमिनेटेड है, टीचर डोमिनेट करेगा। लेकिन अगर टीचर इनमें से किसी एक जगह भी कमज़ोर है,
तो फिर डोमिनेट नहीं करेगा। आप डोमिनेट करें अपने नॉलेज के साथ, अपनी स्किल के साथ, अपने इंटरेक्शन के साथ, अपने करेक्टर के साथ, अपने डिलीवरेंस के साथ। आप सिर्फ इस वजह से डोमिनेट ना करें कि आई एम अ टीचर। टीचर की रिस्पेक्ट बिल्कुल, इसके अंदर किसी किस्म की दो राय नहीं है कि टीचर बिल्कुल स्पिरिचुअल फादर है, रूहानी बाप है, लेकिन उस रूहानी अजमत को 21st सेंचुरी ये कहती है कि डेवलप करें, अपने आप को ऑर्गेनाइज करें, अपने आप को रिफाइन करें, और फिर देखें कि स्टूडेंट्स आपकी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। थैंक्स फॉर योर अटेंशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन मस्ट comment in the comment box. We'll be here for your any query, for your any question. हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर किस्म की कोशिश करेंगे, जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जहाँ तक हमसे हो सकता है उनको हल करने की। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो, और अल्लाह पाक हमें उस अजीम मुअल्लिम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने फरमाई नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि बेशक मुझे मुअल्लिम बनाकर भेजा गया, उनके तरीक़ा तदरीस, उनका इंटरेक्शन, अल्लाह पाक हमें से सीखने की हिम्मत दे, तौफीक दे, ताकि हम एक अच्छे उस्ताद बनकर मुआशरे को बेहतरी की तरफ ले जा सकें। हम 21st सेंचुरी टीचर जो है, जो उसकी रिक्वायरमेंट है, जो 21st सेंचुरी टीचर की डिमांड्स हैं, अल्लाह करे कि हम उनके ऊपर पूरा उतरें, और फिर हम अपनी सोसाइटी को एक्टिवली, कोलैबोरेटिवली उस 21st सेंचुरी में कामयाबी की तरफ लेके जाएं। अल्लाह हाफिज़।